विद्यार्थियों क्लास 10वीं लैसन नंबर 4 कारण ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਯੌਗਿਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਲੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੱਲੇ। ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਬਣਤਰ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ सूत्र किवें बनता वो आप डिस्कस कर लगे हाँ। सब तो पहला आप पहला भी डिस्कस किया भी जोड़ा सब तो पहला सरल हाइड्रोकार्बन वो मीथेन है। वो एक कार्बन होता, देखो किवें एक कार्बन परमाणु की गिनती एक होती है। नाम की है उसका मीथेन। आम सूत्र CH4 कार्बनिक हाइड्रोजन 4। नेक्स्ट देखते हैं कार्बन परमाणु की गिनती अगर आप 2 कर दिए, नाम होगा उसका इथेन। आम सूत्र होगा C2H6। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 हो गई, नाम प्रोपेन। आम सूत्र C3H8। स्ट्रक्चर C3H8। नेक्स्ट कार्बन परमाणु की गिनती अगर 4 हो गई, नाम ब्यूटेन। आम सूत्र C4H10। C4H10 कार्बन 4 हाइड्रोजन 10। सेम स्ट्रक्चर तुम बना सकते हो। C4H10। उस बाद नेक्स्ट आ गया जी आप कार्बन परमाणुओं की गिनती 5 ले, इतनी तुम बना के दिखा दूं। कार्बन परमाणुओं की गिनती 5, नाम होएगा ਉਹਦਾ पेंटेन। आम सूत्र C5H12। C5H12 सेम 1 2 3 4 5 सिमिलरली हाइड्रोजन। लास्ट आ गया जी कार्बन परमाणु की गिनती 6 हो गई, नाम हेक्सेन। आम सूत्र C6H14। C6H14 सिमिलरली 6 कार्बन, नाम हाइड्रोजन। ये कुछ कार्बन यौगिकां दियां लड़ियां ने। 10वीं क्लास आमतौर पर अपन 6 तक ही पढ़ांगे। ये नाम हायर क्लासा जो तुम जाओगे वो अगे भी आ जाएंगे 7-8 वारी। हुण इत्थे तुसीं एक गल का ध्यान नाल जे आपां देखीए, प्रश्न देता ब्यूटेन की स्ट्रक्चर आप अगर ये गल गौर करिए,
ਇਹ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਲੜੀ। ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਬਿਊਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਿਦਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਨੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੌਗਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਣਵੀ ਸੂਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਤਰੀ ਸਮ ਅੰਗਕ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਲੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਬਣ ਹੋਊਗੀ ਸਟਰਕਚਰ ਛੱਲਾ ਬਣੂਗਾ ਛੱਲਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਹੈਲੋਜਨ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਲੋਰੀਨ, ਬਰੋਮੀਨ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਜਾਂ ਬਰੋਮੀਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਲੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਕਲੋਰੀਨ, ਬਰੋਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਹੈਲੋਜਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲ। ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ OH। ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ OH, ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ OH ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਲਕੋਹਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਲਡੀਹਾਈਡ। CHO ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ H, ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ H, ਇਧਰ ਕਾਰਬਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੀਟੋਨ, C ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕੀਟੋਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਐਜ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਯੌਗਿਕ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਫਰੰਟ ਜਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਟੋਨ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਂਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ
एल्डिहाइड, क्योंकि नामकरण वेले की दिक्कत बहुत होती है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ग्रुप के पछाण नहीं पाते, सी डबल बॉन्ड देख के भी ये एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है। दोबारा फिर सुन लो, अगर किसी एज से लग गया, कॉर्नर से लग गया, फिर तो एल्डिहाइड है, जे किते कॉर्नर से नहीं लगे, विचाले लग गया, फिर वो कीटोन। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, जाए एक्सप्लेन करना सी डबल बॉन्ड O इदा लग्या हो सकता। ये क्रियात्मक समूह ने मेन जिहड़े आपां यूज करने ने, दोबारा रिपीट कर लेने, हैलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता, अल्कोहल OH ग्रुप है, एल्डिहाइड CHO या C डबल बॉन्ड OH हो सकता है, कीटोन है C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH या C डबल बॉन्ड OH। ये जिहड़े ने क्रियात्मक समूह ने, ये हुण आपां अगे देखांगे भी जदों कार्बन यौगिकां दी लड़ी दे विच ये किते जुड़े हुंदे ने ते उन्हां दा नॉमनक्लेचर नामकरण आपां किवें करदे हां। नेक्स्ट टॉपिक है क्रियात्मक समूहां दा नामकरण। नॉमनक्लेचर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस टॉपिक का। इस दे विचों तुहानूं क्वेश्चन 2 नंबर का आना ही आना, लगभग कन्फर्म ही है क्वेश्चन आने, वो ध्यान सीखने वाली गल है। सब तो पहले आप डिस्कस करते हैं क्रियात्मक समूह जे लग्या होवे कार्बन यौगिकां दी लड़ी दा नाम किदां बदलदा। सब तो पहला क्रियात्मक समूह है हैलोजन। क्लोरीन ब्रोमीन आप पहला डिस्कस करते हैं, हैलोजन लग्या होवे, ये अगेतर लगेगा जी क्लोरो ब्रोमो एक्सेट्रा जिहड़ा भी है। उदाहरण लेंगे आप, मान लो ये मैं कार्बन यौगिकां दी लड़ी लई है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ क्रियात्मक समूह है फंक्शनल ग्रुप कित्थे ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ नंबरिंग स्टार्ट कर लेनी है कार्बन की, किन्ने कार्बन लगे हुए हैं। देखो इधरों शुरू करांगे 1 2 3, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसको घट तो घट नंबर मिलना चाहिए। इधरों नहीं स्टार्ट करनी 1 2 3, इधरों 3 नंबर मिले, इधरों स्टार्ट करेंगे पहला नंबर मिला था, ये सही। हुण 3 वेले आप पहला पढ़ के आए हैं जो 3 कार्बन लगे होण तो नाम इसका होगा प्रोपीन। जे सिंपल कार्बन यौगिकां दी लड़ी हुंदी नाम प्रोपीन, ते हुण की लग्या ब्रोमीन, अगे की लग जू ब्रोमो, जे ब्रोमीन लिखा तो ब्रोमो, तो नाम इसका की बन गया फिर ब्रोमो प्रोपीन। ठीक है, ब्रोमो प्रोपीन। दूसरा जिहड़ा फंक्शनल ग्रुप है या क्रियात्मक समूह है वो है अल्कोहल। मीन्स OH। तो नाम के पिछे हुण कला जिहड़ा हैलोजन सी वो अगे लगदा, बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप ने जिहड़े नाम के पिछे ही लगणगे, जिहड़ा कुछ लगेगा पिछे लगेगा जी ओल। ओल किदां, ये फिर मैं एक एग्जांपल लीजिए, सेम प्रोसेस है। फिर लिखोगे फंक्शनल ग्रुप इधरों लग्या तो तुसीं जिहड़ी नंबरिंग इधरों स्टार्ट करनी है 1 2 3, 3 कार्बन परमाणु ने, तो नाम क्लियर है प्रोपीन। ठीक है जी, पर ग्रुप किहड़ा लगे अल्कोहल, तो पिछे की लगेगा ओल, प्रोपेन प्लस ओल कर लो, जोड़ के बन गया थोड़ा प्रोपेनो, प्रोपेनो। ओके, नेक्स्ट
एल्डिहाइड। CHO मैं तो पहले भी डिस्कस किया था जब C डबल बॉन्ड हो ऐसे जान लिखा। नाम के पीछे की लगेगा अल ए अल। उदाहरण लेंगे अपन थोड़ी डिफरेंट लेना है। ये फंक्शनल ग्रुप लगे सी डबल बॉन्ड कार्बन है। कार्बन का परमाणु की गिनती आप काउंट कराएंगे। पहला मैं आप पहला डिस्कस किया जो एल्डिहाइड ग्रुप है कॉर्नर से लगे होगा। कॉर्नर से लगे हुआ एल्डिहाइड है जो आप कीटोन डिस्कस करेंगे वो भी मैं दोबारा दसूंगा। फिर होंगे इधरों नंबरिंग 1 2 3 4 कितने कार्बन ने 4 तो नाम की होगा ब्यूटेन। प्लस क्या लगेगा अल। नाम की बन गया ब्यूटेनल। इस तरीके नाल तुसीं होर बहुत एग्जांपल्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आ गया जी कीटोन। C डबल बॉन्ड O पिछेतर लगेगा ओन। ओन उदाहरण हुण इस समझने वाली गल है। देखो इतने मैं कह रहा था देखने में इको जरा लगे जे एच से लगे कॉर्नर से वो एल्डिहाइड है जो विचाले लगे है ये कीटोन। हुण नंबरिंग जो तुसीं इधरों करोगे 1 2 3 4 3 नंबर मिल रहा है। जो इधरों करोगे 1 2 3 4 तो 2 नंबर मिल रहा है। नंबरिंग इधरों स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 ठीक है। 4 में तक की बन गया नाम ब्यूटेन। प्लस ओन की बन गया ब्यूटेनो। क्लियर। लास्ट जेड़ा फंक्शनल ग्रुप आ गया कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। C डबल बॉन्ड OH। इस क्षेत्र की लगता OA प्लस है। उदाहरण फिर सिंपल ही लगेंगे अपन। ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ 3 कार्बन में 1 2 3 प्रोपेन प्लस पीछे क्या लगेगा OH की बन गया प्रोपेनोइक एसिड। ये जिहड़े ने फंक्शनल ग्रुप ने। ਆਪਾਂ ਹੁਣ यौगिकों का नामकरण किवें करना जिन्हां दे विच क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप लगे। 2-4 दी उदाहरण करते हैं फिर उल्ट करांगे। अगर आपां नूं नाम दिता होया किसी भी यौगिक का उहदा रचना किवें करनी है, उसकी स्ट्रक्चर किवें बनाउणी है, दोनों आपां डिस्कस करांगे। सब तो पहला सपोज करो आपां नूं दिता होया CH3CH2Br। सेम स्ट्रक्चर है जो तुम खोल के देखोगे तो भी इतनी कहूँ CH
ठीक है जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਛਾਣਨੀਆਂ ਜਸਟ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਪਰਮਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ, ਬਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਓ 1 2। ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਏਨ ਲੱਗਦਾ ਇਥੀਨ ਹੈ। फिर तुसीं देखना कि फंक्शनल ग्रुप हैलोजन लग्या है, ब्रोमीन, सिर्फ हैलोजन जो फंक्शनल ग्रुप है वो अगे लगना, ब्रोमीन लग्या तो की बनूगा पूरा नाम ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन। ठीक है जी। होर देखो जिमें एक उदाहरण ले लेंगे, ये भी सब तो पहला जिधरों फंक्शनल ग्रुप लगे उधरों गिनती स्टार्ट कर लो 1 2 3 4। किन्ने कार्बन लगे ने 4, 4 ते की हुंदा ब्यूटेन। फिर आप फंक्शनल ग्रुप देखना OH, OH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल का की लगता है पिछे ओल लगता, ब्यूटेन प्लस ओल की बन गया ब्यूटेन नो। ठीक है। होर देख लो कभी उदाहरण को देख रहे हैं सी 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 सोचो इसका। सब तो पहला तो नंबरिंग देखो बेटे, किधरों स्टार्ट कराएंगे, इधरों जाएगा, यस डेफिनेटली इधरों कराएंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप लगे 1 2 3 4। किन्ने ने 4, ब्यूटेन प्लस ग्रुप किहड़ा है कॉर्नर ते लग्या हुआ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का की लगता अल, की बन गया ब्यूटेनल। ठीक है जी। होर देखो एक उदाहरण, एक मैं उदाहरण लगे बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। सी डबल बॉन्ड H, एक कार्बन है मतलब मीथेन, ग्रुप किहड़ा है ये कॉर्नर ही है, कॉर्नर वाली में एल्डिहाइड, सी डबल बॉन्ड तो मीथेन प्लस अल मीथेनल। ठीक है जी। होर देखो एक उदाहरण, कितने कार्बन ने 3, 1 2 3, प्रोपेन प्लस ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, पीछे क्या लगेगा ओलिक एसिड, नाम बन गया प्रोपेनोइक एसिड। ये हैगा सोनू स्ट्रक्चर दी हुई है, आपाने नाम बनाना। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन किस टाइप आ सकता, ਤੁਹਾਨੂੰ नाम दिता होया तुसीं उहदी स्ट्रक्चर बनाना। सपोज करो आपां ने बनाना एक सिंपल उदाहरण, ब्यूटेनोल। इथों तुसीं सब तो पहला पछाणना ब्यूट मतलब 4 कार्बन, ओन लग्या होया मतलब कीटोन ग्रुप लगे। ठीक है जी। सब तो पहला तुसीं की करना 4 कार्बन ले लेने, फिर आप ग्रुप लाना, कीटोन ग्रुप आपको पता हमेशा बजाले लगू, चाहे इतने ला दो चाहे इतने ला दो, इन्होंने दोनों का बेटे लगना नहीं, कीटोन ग्रुप साइड से लगता नहीं, आप इतने ला सी डबल बॉन्ड। हुण कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है, हम कुछ नहीं करना। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तुसीं आले दुआले कार्बन के 4 बॉन्ड लाने हो, बाकी सारे हाइड्रोजन। इन्हें की गल करिए, ये देखो 1 ते 2
3 ਤੇ 4 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਊਟੇਨੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਹੈਕਸੇਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਕਸੇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਵੈਸੇ ਇਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਖੀਏ ਹੈਕਸੇਨ ਪਲੱਸ ਅਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਲ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਐਲਡੀਹਾਈਡ। ਹੈਕਸੇਨ मतलब 6 ਕਾਰਬਨ। फिर देखो बाकी सारे कार्बन की संयोजकता पूरी करते हैं। ये बन गया थोड़ा हेक्सेनल। ठीक है जी। हुण तक आप जिन्ना भी कुछ पढ़ लिया क्रियात्मक समूह बारे, क्रियात्मक समूह बारे डिस्कस किया पहला भी किहड़े किहड़े हुंदे ने ते फिर उन्हां दा फार्मूला की है। उस तो बाद नॉमनक्लेचर दे विच नाम जे आपां करिए कि कार्बन यौगिकां दे जेहड़े दे विच क्रियात्मक समूह लगे हुए ने, फिर नाम ते की फर्क पैंदा, अगे नाम ते की लगदा, पिछे की लगदा, वो आपां सारा डिस्कस किया। फिर इहदे कुछ एग्जांपल्स लईआं कि जे तुहानूं नाम दिता होया तो तुसीं कार्बन यौगिक दी लड़ी किवें स्ट्रक्चर किवें बनाओगे, जे तुहानूं स्ट्रक्चर दिता होया फिर उहदा नाम किवें बनाओगे। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।